Hi everyone, welcome again. This is part 5 of the puzzle series which we are doing, correct? 4 puzzles have already been done. If you have not watched these videos, right, you can watch it in the same channel, okay? And the logic is same because we are doing practice for LRDI, right? So the more practice, the more puzzles you will do, right? The more your logic will be cleared for CAT, right? Because as I told you earlier also that quant is something you can prepare by using the concepts and all, right? But if you want to crack LRDI of CAT, right, you must do different type of puzzles right from the starting. Logic is something which is built over a time. It's not a 1 day or 1 week or 1 month process, correct? All right, sorry. So we'll be doing more and more puzzles. This is part 5. Again, this is my brief introduction, right? Now you can join this Telegram channel because I will be posting every puzzle beforehand, right? So you can try this out and then watch the video, correct? And some of you are already answering me on the channel itself that this is the answer, right? So keep updating yourself. Let's do the puzzle now. So we'll be doing alphanumeric puzzle today. Pause the video, give it a try if you have not done it yet. ये वाला करना है, ठीक है, ये नहीं करना है. अल्फा न्यूमेरिक का फंडामेंटल समझा देता हूं. इसको क्रिप्टारिथम्स भी बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी से बना है. So the basic logic is already it is mentioned here. In the additions above, each letter represents a different digit. What does A represent? Alright, CAT में multiple times इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, correct? So you must think about this, right? Okay. Although ये थोड़ा सा higher side पे है, tough puzzle है. That's why it's written like cryptography only, है ना? Although ये भी एक question ही है. I mean, it's a question of alphanumeric, but काफी tough है. जो नाम से इसके दिखता है. I agree it's tough, right? I mean, cryptography questions are something जो काफी interesting बन जाते हैं, right? जैसे एक ये है. You must have heard about send plus more is equal to money, है ना? ऐसे कई सारे हैं. We'll talk about that in some other video. But first try this out, okay? So the basic funda is same that unless if it is not mentioned that every letter represents different digit, it is by default there, right? So if it is not, even it is not mentioned, so you must be sure कि भाई A, B, C definitely different होंगे, right? G, H, I different होंगे, okay? Same नहीं हो सकता. And whenever A are using, that has to be a same digit. So if A is 1, so वो ऊपर 1 1 1 आएगा, है ना? ऐसी D D D will be same digit. That's the basic fundamental. Okay? ठीक है? चलो ट्राई कर लिया हुआ. अब सोचते हैं इसके ऊपर. क्वेश्चन अच्छा है ये. Think on this. ये A B C है और ये A D E है, right? And summation दोनों का सेम आ रहा है. F G H I दोनों का सेम आ रहा है. ओके इसका मतलब ये पक्का है कि A प्लस B प्लस C का जो सम है और वो A प्लस D प्लस E का जो सम है दैट विल बी इक्वल. दैट्स फॉर श्योर, है ना? A प्लस B प्लस C विल बी इक्वल टू A प्लस D प्लस E. तभी सेम सम आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना? अब ये कितना होगा पहले इसमें सोचते हैं. थिंक ऑन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? देखो यहां भी A प्लस B प्लस C है, यहां भी A प्लस B प्लस C है और यहां भी A प्लस B प्लस C है, राइट? अब सोचो इन तीनों का सम अगर सपोज 10 से कम है, सपोज 9 है, A प्लस B प्लस C का सपोज 9 है, ठीक है? तो यहां भी 9 आता, यहां भी 9 आता और यहां भी 9 आता. आंसर विल बी अ 3 डिजिट नंबर ना. अगर ये 4 डिजिट नंबर बन रहा है वो तभी हो सकता है जब कैरी फॉरवर्ड जाए. इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये वैल्यूज 10 या 10 से बड़ी तो पक्का है ना? मतलब 2 डिजिट नंबर तो ये है, उससे कम तो नहीं हो सकता. दूसरा पॉइंट, अगर ये 2 डिजिट नंबर है, सपोज का सम हो जाता है 12, मैं मान लेता हूं ये 12 है. अगर आप 12 सम लोगे, ठीक है, तो क्या होगा? यहां भी 12 आएगा, यहां भी 12 आएगा, यहां भी 12 आएगा. सम वाइज बोल रहा हूं. सो व्हेन यू ऐड दिस क्या होने वाला है? यहां पे 2 आ जाएगा, यहां से 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, सो 12 प्लस 1 बिकम 13. फिर 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, सो इट विल बिकम अगेन 13 और यहां आ जाएगा 1. बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये और ये डिजिट सेम हो गई. क्यों सेम हुई? बिकॉज यहां से भी 1 कैरी फॉरवर्ड गया और यहां से भी 1 कैरी फॉरवर्ड गया. लेकिन मुझे ये दोनों डिफरेंट चाहिए.
G और H हैज टू बी डिफरेंट। ये कब होगा? जब यहां से और यहां से डिफरेंट कैरी फॉरवर्ड जाए। आर यू क्लियर? तो एक बात तो क्लियर है कि यहां पे कैरी फॉरवर्ड डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं हो सकते। ऑलराइट, अब क्या ये पॉसिबल है कि ये 2 और ये 1 हो जाए? सपोज इनका सम 24 ले लेता हूं मैं, लेट्स से, है ना। अगर ये 24 है तो ये 4 आ जाएगा, यहां से 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा, एंड देन 24 प्लस 2 इज 26, अगेन 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो गया होगा। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 2 और ये 3 हो जाए? बट एक बात बताओ, 3 डिफरेंट नंबर है, ये 3 डिफरेंट नंबर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7, 8, 9 लोगे आप, इनका सम 24 आएगा ना। मतलब 3 डिफरेंट सिंगल डिजिट नंबर का सम 24 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता ना। सपोज वो सेम भी होते तीनों, तो भी 9 प्लस 9 प्लस 9 27 से ऊपर आने का चांस नहीं है, राइट। अब ये बात पक्की है कि ये जो सम है ये 24 से ऊपर हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है डिफरेंट के लिए, है ना। और 24 के हमने ये चेक कर लिया कि अगर 2 कैरी फॉरवर्ड इधर आ रहा है तो इधर भी 2 कैरी फॉरवर्ड ही आएगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी 3, है ना। वो 26 मैक्सिमम बनेगा, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं। क्लियर है? तो ये दोनों 2 भी नहीं हो सकते, है ना। इसका मतलब ये तो पक्का 2 नहीं है, ये तो हमने क्लियर कर लिया ना, क्योंकि मेरे को ये दोनों डिफरेंट चाहिए। अब मैंने 2 लेके देखा, आप कोई छोटा नंबर भी लोगे, 20 भी ले लोगे, तब भी सेम प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज अगर आप यहां 2 लेते हो तो यहां भी 2 ही आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। तो अगर यहां 2 लेंगे तो ये भी सेम ही आएगा, डिफरेंट होने का चांस नहीं है। फिर क्या पॉसिबिलिटी बच गई हमारे पास कि जो पहला वाला है यहां से 1 कैरी फॉरवर्ड जाए और यहां से 1 में जाके 2 कैरी फॉरवर्ड जाए। अब ये कब पॉसिबल है, ये हमको देखना है ना। इधर से 1 कैरी फॉरवर्ड जाना चाहिए। अब a प्लस बी प्लस सी सपोज 18 लेते हैं, अगर ये 18 है तो यहां 19 बन जाएगा, तब भी 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा ना। तो 2 कैरी फॉरवर्ड कब हो सकता है? द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि जब ये तीनों का सम 19 बनता हो। उससे क्या होगा, यहां पर सम 19 बनेगा तो 9 आ जाएगा, यहां सम 19 बन के प्लस 1 होके 20 हो जाएगा, देन द कैरी फॉरवर्ड विल बी 2। इज दिस ओनली पॉसिबिलिटी, राइट। 18 पे हमने देख लिया कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 18 पे भी 1 कैरी फॉरवर्ड जाएंगे, 1 और 2 नहीं हो सकता। सो द ओनली पॉसिबिलिटी जहां पर यहां 1 कैरी फॉरवर्ड हो और यहां पर 2 कैरी फॉरवर्ड हो, दैट हैज टू बी जब इन दोनों का सम 19 हो, और कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। यहां पे ये भी 19 आया, ये भी 19 आया, ये भी 19 आया, तो यहां तो 9 आ गया, दैट्स फॉर श्योर। यहां पर 19 प्लस 1 करके 20 का 0 आ जाएगा और 2 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। अब 19 प्लस 2 होके 21 यहां पर आपका आ गया। तो ये तो पक्का पता लग गया कि ये जो सम है FGHI ये क्या है, 2109 है। ठीक है, नाउ आई नीड टू फाइंड ABC एंड DEF, करेक्ट। अब मेरे पास कौन कौन से नंबर बच गए? 0 1 2 यूज हो गया, 3 बच गया मेरे पास, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया, है ना। ये सारे बचे हैं बीच के, इनका सम 19 बनाना है मेरे को, है ना। 6 7 8 भी ले लेते हो तो 21 सम बनता है ना। चलो, अगर मैं 8 को एक्सक्लूड कर दूं फॉर अ टाइम बिंग, कि सपोज मैं इसको नहीं लेता हूं, उस केस में क्या होगा, 5 6 7 मैक्सिमम होगा। इन तीनों का सम कितना आएगा, 18। इसका मतलब मैं ये नहीं कर सकता ना कि मैं 8 को गायब कर दूं। अगर मैं 8 यूज नहीं करूंगा तो मेरा मैक्सिमम सम 18 हो सकता है, जबकि मुझे 19 चाहिए, करेक्ट। तो 8 तो मुझे डेफिनेटली चाहिए होगा ना, इसके बिना काम बनेगा नहीं। क्लियर है ये? तो एक नंबर तो पक्का 8 है। और वैसे बात यहां से बन गई, बट आई विल एक्सप्लेन फर्दर, और ये बता दूंगा कि क्यों बात बन गई अभी तक। ठीक है, 8 अगर पक्का आ गया तो अब मुझे 19 माइनस 8 करके 11 चाहिए। तो 2 पॉसिबिलिटीज चाहिए जहां पर 11 सम बनता हो। तो एक तो आपका बन जाएगा 5 प्लस 6 और एक बन जाएगा 4 प्लस 7। तो एक होना चाहिए 8 प्लस 5 प्लस 6, एक होना चाहिए 8 प्लस 4 प्लस 7। तो ऑब्वियसली अब देखो यहाँ पे अगर मैं फिट करूंगा तो कौन सा नंबर कॉमन है, A ओनली, तो ये तो पक्का ये होगा ना। और एक केस में ये BC हो जाएंगे और ये DE हो जाएंगे इन एनी ऑर्डर, या रिवर्स भी हो सकता है। तो मुझे ये नहीं पता कि B, C, D और E क्या है, दैट कैन बी एनीथिंग
4, 5, 6, 7 में कुछ भी सकता है. A is definitely 8. अब क्यों यहां से मेरा आंसर आ गया था? बिकॉज ये तो डेफिनेटली आएगा, और कौन सा अल्फाबेट डेफिनेटली है दोनों केस में? A ओनली ना, तो A पक्का 8 ही हुआ ना, और कोई चांस ही नहीं है. तो मतलब मैं टाइम बचाने के लिए भी कर सकता हूं कि आई विल नॉट मेक दीज केसेस, ऐसा कुछ आता है तो. राइट है? आई होप द लॉजिक इज क्लियर. राइट, वेरी गुड क्वेश्चन. Okay, try to do more questions on alphanumeric, right? Let me give you some of them. मतलब ओके जो करने वाले हैं, राइट? ये तो बहुत टफ है, ऐसा एग्जाम में आएगा भी नहीं. ओके, अगर आएगा तो मतलब इस लेवल का अगर आता है तो फिर को हिंट दे देता है वो कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ऐसा करके कुछ हिंट देगा, राइट? अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, है ना. सो जैसे एक है एक ये कैट में ही क्वेश्चन आया था बहुत पहले, कैट दैट में. तो A B C D E into 3, A B C D E 1 into 3 is equal to 1 A B C D E. ठीक है. एक और है A B C D into 4 is D C B A. इसी का एक एक्स्ट्रा वर्जन है A B C D E into 4 is E D C, रिवर्स ऑर्डर है बेसिकली. लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं. बेसिकली देयर इज अ 6 डिजिट नंबर एंडिंग इन 1. नहीं यार, ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने, ये नहीं था. 1 और ABCDE1, हाँ, इसी में 2 पे भी बनता है. ठीक है. सो बेसिकली देयर इज अ 6 डिजिट नंबर विच इज स्टार्टिंग विद 1. You multiply this by 3 and it gives you same type of numbers, just 1 is shifted to the rightmost side and order remains same of the next digit, remaining digit, right? Second question is basically there is a 4 digit number, all distinct digits. You multiply this by 4, it gets reversed, and same with this 5 digit number. You multiply this by 4, it gets reversed. So you can try these 3 questions, right? Very good questions to start with alphanumerics, right? We'll try to do more such questions in the upcoming videos also. Alright, chaliye again, keep do subscribe the channel, right? Do subscribe the YouTube channel also, and like the video if you are liking it. Correct. You can share it with your friends also, right? I'll be posting the puzzles well beforehand in the Telegram channel, and then you can watch it here. Alright, chaliye, see you, bye bye.